In this class, we are going to study about the male accessory glands. So these glands are basically associated with the passageway or the pathway of the sperm. So basically we know what is the pathway of the sperm, that is the sperms are produced in the seminiferous tubule, and from the seminiferous tubule sperms move to the ready testis, then the vasa efferentia, epididymis, then comes the vas deferens and the ejaculatory duct, and ultimately the urethra, which leads to the outside. So this was the pathway of sperm or the conduction pathway of the sperms. But these glands are not the part of the conduction pathway, but these are associated with them, and these have certain roles to play. Now these glands have different secretions and they have different roles. But first of all, let's look at the common function of these glands. यानी कि इन सभी ग्लैंड्स का एक कॉमन फंक्शन ये है कि इन तीनों ग्लैंड से एल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रेशन होता है. दैट इज इन तीनों ग्लैंड से जो एल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रेशन हो रहा है, उस सिक्रेशन से फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है. दैट इज ऑल दीज ग्लैंड्स हैव डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट सिक्रेशंस, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, but obviously all these have an alkaline secretion which is essential for the sperm, because the sperms can be damaged in the acidic environment in the फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. सो वहां पर जो एसिड्स है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इन तीनों में एक कॉमन सिक्रीशन है कि इन तीनों में अल्कलाइन सिक्रीशन होगा. उसके अलावा इन तीनों ग्लैंड से जो सिक्रीशंस निकलते हैं उनका जो मेन फंक्शन होता है वो स्पर्म्स के कंडक्शन में भी हेल्प करना. जैसे कि इनके जो सिक्रीशंस होते हैं वो पैसेज वे या पाथवे को लुब्रिकेट करते हैं. उसके अलावा दीज सिक्रीशंस आल्सो नरिश द स्पर्म्स अपार्ट फ्रॉम देयर हेल्पिंग इन कंडक्शन. So basically all these functions are the common functions of all these secretions of all these glands. So that is conduction, lubrication and also nourishment of the sperm, that is in the male. Now when the sperms reach the female reproductive tract, there also the different secretions of these three glands play different roles. So that is what we have to study here. So the first and the biggest gland and also the most important gland among these three is the seminal vesicle. So as you can see from the name, that is seminal, that means something related to semen. So this is the largest gland out of these three. This seminal vesicle is the largest gland, but together these are the largest gland because these are two glands, not just one, but this is one gland and these are also two glands. So basically these are a pair of glands. This is a single large gland and this is also a pair of gland. So ultimately this is the most important, and it is why because of these secretions that it is secreting. तो इनका जो सबसे पहला डेफिनेशन है वो है पेयर ऑफ मस्कुलो ग्लैंडुलर. यानी कि ये ग्लैंडुलर तो है, इनमें सिक्रीशन तो हो रहा है, लेकिन ये मस्कुलर है, यानी कि मस्कुलो ग्लैंडुलर टिश्यू है इनके अंदर. और इनका जो लेंथ होता है अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर का होता है. और इनका जो लोकेशन होता है वो होता है हमारे रेक्टम, जिसमें कि फीकल मैटर को टेम्पोरली स्टोर किया जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें कि यूरिन को टेम्पोरली स्टोर किया जाता है. उन दोनों के बीच में ये पाया जाता है. जैसे कि हमारा जो ब्लैडर होता है वो थोड़ा सा कुछ इस तरह का होता है. तो हमारे ब्लैडर के निचले पार्ट में, यानी कि इस ब्लैडर के पीछे में जो हमारा रेक्टम होता है वहां पर ये जो ग्लैंड्स हैं ये पाए जाते हैं. ये होते हैं हमारे सेमिनल वेसिकल, यानी कि ये ब्लैडर के पीछे और रेक्टम के आगे, यानी कि ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में ये ग्लैंड्स पाए जाते हैं. तो ये इनका हो गया लोकेशन. और ऑब्वियसली इन तीनों में एक कॉमन पॉइंट हम देखने वाले हैं कि एल्कलाइन सिक्रीशन होगा. यहाँ भी एल्कलाइन है, यहाँ भी एल्कलाइन होगा, वही चीज यहाँ भी होगा. एल्कलाइन सिक्रीशन तीनों में कॉमन पॉइंट है. उसके अलावा कंट्रीब्यूट्स अबाउट 60% ऑफ द स्पर्म्स. तो हम 60% ऑफ द सीमेन, स्पर्म्स का प्रोडक्शन तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है. तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि जो सीमेन है जिसमें स्पर्म्स का के लिए जो कि मीडियम होता है
उस सीमेन में लगभग 60% जो कॉन्स्टिट्यूएंट है या 60% कंट्रीब्यूशन है वो आता है सेमिनल वेसिकल से, एंड अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सीमेन comes from this prostate gland, and approximately 15% or 10 to 15% of the semen is constituted by the secretions of the bulbourethral or Cowper's gland. So basically this is the constitution: 60%, 25%, and around 10 to 15% from here. So this is their relative contribution. So now you can understand the seminal vesicles are the largest contributor of semen, because 60% of the semen is being contributed by this seminal vesicle, and now here 25% and here 10 to 15%. So this is also a very important point. So alkaline secretion and 60% of the semen, this is the main point over here. Now we come to the next point, and these are one of the most important parts of this whole section. Now the secretion of the seminal vesicle contains various substances, and we have to understand their functions, what is the purpose of their secretion in the semen. So first of all we'll have a look at the prostaglandins. So prostaglandins एक हार्मोन होते हैं, तो यूट्रस के अंदर स्पर्म्स को मूव करना होता है, क्योंकि स्पर्म्स वेजाइना तक ही डिपॉजिट होते हैं, वेजाइना के एंड पे, या हम कह सकते हैं कि सर्विक्स के माउथ पे। तो सर्विक्स के माउथ से स्पर्म्स को स्विम करके जाना होता है फैलोपियन ट्यूब में, एक पॉइंट होता है जिसे कहते हैं एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। तो फैलोपियन ट्यूब के उस पॉइंट तक उसे जाना होता है, तो ऑब्वियसली उसे स्विम करके जाना होता है। तो स्पर्म में खुद की तो एनर्जी होती है, खुद की टेल होती है, जिसकी वजह से स्पर्म स्विम करके वहां पहुंच सकते हैं, बट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आल्सो हेल्प इन दैट. So the main function of the prostaglandins is to stimulate the uterine contraction, और you can say reverse peristalsis. So जो यूट्रस होता है वहां पर स्पर्म्स के लिए रिवर्स पेरिस्टोलिसिस होता है। तो यूट्रस का शेप थोड़ा सा कुछ इस तरह से होता है। So uterus is somewhat inverted pear like structure. तो यहाँ पर हमारा सर्विक्स है जो कि यूट्रस का लोअर एंड है, और ये पार्ट को वेजाइना कहते हैं। तो स्पर्म्स को यहाँ से ट्रेवल करके अल्टीमेटली जाना होता है यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली। तो इस पॉइंट पे ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स है ये रिवर्स पेरिस्टोलिसिस करते हैं। रिवर्स पेरिस्टोलिसिस करते हैं तो उससे क्या होता है कि स्पर्म्स को ऊपर जाने में मदद मिलती है, यानी कि स्पर्म्स खुद से तो ट्रैवल कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें थोड़ा सा हेल्प की जरूरत होती है। तो उससे क्या होता है कि जब रिवर्स पेरिस्टोलिसिस यानी कि इस डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की ओर यहाँ पर जो मूवमेंट होगा यूट्रस के इन दोनों वॉल का, तो उससे क्या होगा स्पर्म को ऊपर जाने में मदद मिलेगा। सो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन यूट्रस के मसल को यही कॉन्ट्रैक्शन या यही रिवर्स पेरिस्टोलिसिस कराता है, यानी कि रिवर्स पेरिस्टोलिसिस मतलब नीचे से ऊपर की ओर पेरिस्टोलिसिस यहाँ पर हो रहा है, तो स्पर्म्स को भी नीचे से ऊपर जाना है, तो स्पर्म्स को बेसिकली मदद करता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन ऊपर की ओर जाने में, क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन यूट्रस में रिवर्स पेरिस्टोलिसिस करा रहा है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। नाउ we have already known that alkaline fluid, what is this function? Obviously neutralizing the acids of the female reproductive tract. तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है राइट फ्रॉम द वेजाइना टू द फैलोपियन ट्यूब इज एसिडिक, वो पूरा एसिडिक है। तो इसका भी अल्कलाइन फ्लूइड, इसका भी अल्कलाइन फ्लूइड और इसका भी अल्कलाइन फ्लूइड। ऑब्वियसली ये कॉमन फंक्शन है कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के एसिड्स को न्यूट्रलाइज करना है, दैट इज ऑब्वियस। नाउ स्पर्म्स जो ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे कि स्पर्म्स के अंदर बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे हम सेल की पावर हाउस कहते हैं। So the powerhouse of the cell means it is the source of energy, and for being a source of energy, mitochondria requires an energy source. So that energy source is fructose. तो जो सीमेनल वेसिकल से फ्रक्टोज निकल रहा है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द स्पर्म, क्योंकि स्पर्म क्या किसी चीज का ऑक्सीडेशन करेगा, या स्पर्म में एनर्जी अगर आना है तो किसी ना किसी चीज का बर्निंग या ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ग्लूकोज नहीं, यहाँ पर फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन किया जाता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ alkaline fluid, fructose and prostaglandin.
नाउ वी कम टू द क्लॉटिंग फैक्टर। अब क्लॉटिंग फैक्टर को समझने के लिए यू कैन नाउ ऑब्वियसली इमेजिन कि जो वेजाइना होता है वो नॉर्मली डाउनवर्ड फेसिंग होता है। So after the sexual activity is performed, if semen is deposited at the mouth of the cervix or at the end of the vagina, so from there the sperms can be pushed outwards. But अगर वहां पे क्लॉटिंग फैक्टर होगा, स्पर्म है सीमेन में और सीमेन अगर क्लॉट कर जाएगा तो सीमेन बाहर की ओर पुश नहीं हो पाएगा तुरंत, जिससे कि स्पर्म्स को टाइम मिल जाएगा सर्विक्स के थ्रू ऊपर की ओर जाने के लिए। तो बेसिकली ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये हमारे स्पर्म्स को उतना एक्स्ट्रा टाइम देते हैं ताकि वो ऊपर जा पाए, क्योंकि अगर ये क्लॉट नहीं करेगा तो जो सीमेन वेजाइना में डिपॉजिट हुआ है वो सीमेन बाहर की ओर पुश हो जाएगा। तो क्लॉट करने से वहां पर वो रुकता है। वो क्लॉटिंग से क्या होता है कि सीमेन बहुत ज्यादा विस्कस हो जाता है, जिससे कि वो इजिली बाहर की ओर पुश नहीं होता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स। नाउ दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड, दीज आर नॉट द सेम एज ब्लड। उसके अलावा हम बात करते हैं सेमिनल फ्लूइड आल्सो एक्टिवेट्स द स्पर्म। तो हमें पता है कि स्पर्म्स का नॉर्मल जो स्टोरेज होता है इजैक्यूलेशन से पहले वो तो होता है एपिडिडाइमिस के अंदर। तो एपिडिडाइमिस के अंदर जब तक स्पर्म्स होते हैं, एट दैट टाइम द स्पर्म्स आर नॉट वेरी एक्टिव, दे आर वेरी स्लगिश. So they do not go rapid movement because they are very sluggish, or you can say they move very slow. So epididymis में जो स्पर्म्स काफी स्लो हैं उनको एक्टिवेट करने का काम ये सेमिनल वेसिकल करता है। यानी कि जब सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन स्पर्म पे आता है या सीमेन में स्पर्म आता है तो वहां पर स्पर्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे कि वो इजिली स्विम करने लगेंगे। सो बेसिकली ये भी एक्टिवेट करते हैं स्पर्म को और ये भी करते हैं। तो नाउ इसके बाद हम देखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। तो एल्कलाइन फ्लूइड जो था इसमें भी होगा जस्ट लाइक हियर। सो हियर आल्सो द एल्कलाइन फ्लूइड विल हेल्प इन द न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिटी ऑफ द फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। सो यहाँ भी वो कॉमन फंक्शन हो गया जस्ट लाइक अबव, लेकिन यहाँ पर हमें इसके पहले स्ट्रक्चर्स को देखने होंगे ये क्या है। तो सबसे पहली डिफरेंस जो ऊपर में और यहाँ पर है वो ये है कि ऊपर में पेयर ऑफ ग्लैंड है, यहां पर ये पेयर ऑफ ग्लैंड है, यानी कि सेमिनल वेसिकल दो होते हैं। लेकिन ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है, ये दो नहीं है, ये सिंगल है। लेकिन सिंगल लार्ज ग्लैंड है, ये काफी छोटा ग्लैंड नहीं है, ये काफी छोटा ग्लैंड होता है। दैट इज काउपर्स ग्लैंड काफी छोटा ग्लैंड होता है, लेकिन हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड काफी बड़ा होता है एज कंपेयर टू हियर। सो ये यूरेथ्रा को सराउंड करता है, सराउंड द यूरेथ्रा। So this is the location of prostate gland। जब यूरेथ्रा आता है यूरिनरी ब्लैडर से, तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि जो यूरेथ्रा का सेकंड पोर्शन होता है, दैट इज पहला पोर्शन को कहते हैं यूरिनरी यूरेथ्रा, सेकंड पोर्शन को कहते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। उसके बाद होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, उसके बाद होता है पेनाइल यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा के ये चार पोर्शन हमने पढ़े थे। तो इस ग्लैंड का लोकेशन है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, यानी कि ये प्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा को सराउंड करता है। और इस ग्लैंड का लोकेशन है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, यानी कि ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा को के पास पाया जाता है। तो इन दोनों ग्लैंड्स का लोकेशन, इसका है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और इसका है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। तो एज यू कैन सी दीज आर एसोसिएटेड विद द यूरेथ्रा, दीज ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद द यूरेथ्रा। नाउ it contains 30 to 40 tubuloglandular vascular glands। so यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस ग्लैंड के अंदर ये एक एज अ होल बड़ा ग्लैंड नहीं है, इसके अंदर खुद छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्यूबुलोवैस्कुलर ग्लैंड, और अराउंड 30 to 40 ट्यूबुलर वैस्कुलर ग्लैंड्स कहते हैं इन्हें। लेकिन ये सारे ग्लैंड्स साथ में यूरेथ्रा के अंदर सिक्रीशन नहीं करते हैं। ये ऑब्वियस है कि ये अगर साथ में नहीं कर रहे हैं तो इनका कोई सेपरेट पाथवे होगा। तो ये जो ग्लैंड्स है ना, इनका एक कॉमन पाथवे नहीं है, इन ग्लैंड्स का ओपनिंग यूरेथ्रा में सेपरेटली होता है, यानी कि ये सभी ग्लैंड साथ में एक कॉमन ट्यूब नहीं फॉर्म करते हैं।
लेकिन सेमिनल वेसिकल्स या फिर यहाँ पर ग्लैंड एक कॉमन ट्यूब से जाता है सीमेन में या फिर हम स्पर्म में कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये जो छोटे छोटे ग्लैंड्स है जिन्हें हम ट्यूबुलोवैस्कुलर ग्लैंड्स कह रहे हैं, इनका ओपनिंग सेपरेट होता है यूरेथ्रा के अंदर, दैट इज दैट ओपन सेपरेटली इनटू द यूरेथ्रा। ये साथ में ओपन यानी कि एक ट्यूब कॉमन ट्यूब को फॉर्म करके यूरेथ्रा में ओपन नहीं होते हैं। नाउ इनके भी सिक्रीशन होते हैं, थिन है, मिल्की सिक्रीशन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी चीजें जो हमें देखनी है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैल्शियम, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, एंजाइम्स लाइक अमाइलेज, पेप्सिनोजन। सो बेसिकली इन सभी का फंक्शन डिफरेंट है। कैल्शियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट, तो आपको केमिस्ट्री से पता है कि ये जो कैल्शियम आयंस हैं या फिर जो बाइकार्बोनेट आयंस है ये बफर का काम करेंगे, एसिडिटी बेसिसिटी रेगुलेटर का काम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो सिट्रिक एसिड है, ये सिट्रिक एसिड एक न्यूट्रिएंट होता है स्पर्म के लिए। सो दिस सिट्रिक एसिड इज बेसिकली नथिंग बट अ न्यूट्रिएंट फॉर द स्पर्म। And now we come to some enzyme, that is amylase pepsinogen. Now you know amylase is a carbohydrate digesting enzyme and pepsinogen is an inactive peptide or peptidase. So pepsinogen ultimately pepsin बनता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है और ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है। तो इसके अंदर ये सारे एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। आपने 11th क्लास में डाइजेशन चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा इन दोनों एंजाइम्स को, दैट इज अमाइलेज और पेप्सिनोजन। नाउ यहाँ पर जो सीमेन का कॉन्स्टिट्यूएंट था 60%, वो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये जो ग्लैंड है 25% ऑफ द सीमेन को कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज अराउंड 25%। नाउ इनका जो सिक्रीशन है ये ऑब्वियस है कि जिस तरीके से इनका सिक्रीशन स्पर्म को नरिश कर रहा था, एक्टिवेट कर रहा था, इनका सिक्रीशन भी स्पर्म को या फिर हम कह सकते हैं सीमेन में जो स्पर्म्स प्रेजेंट है जो कि उनमें एक तरह से कोआगुलेटेड फॉर्म या फिर जो स्पर्म्स सस्पेंडेड होते हैं सीमेन के अंदर, उन्हें ये एक्टिवेट करेगा, नरिश करेगा जस्ट लाइक अबव। तो ऊपर से ये सेम कॉमन फंक्शन है, नरिशमेंट एंड एक्टिवेशन। सो बेसिकली कुछ फंक्शंस कॉमन है, जैसे कि अल्कलाइन सिक्रीशन यहाँ भी है, नरिशमेंट एंड एक्टिवेशन यहाँ भी है, तो कुछ फंक्शंस कॉमन होते हैं इन तीनों ग्लैंड्स में। नाउ we come to the last gland and that is the bulbourethral, और इसको हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी नाम कह सकते हो, दोनों में से कोई भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। सो बेसिकली इनका काम मेनली यूरेथ्रा से रिलेटेड होता है। तो यूरेथ्रा से नॉर्मली इजैकुलेशन तो नहीं होता, इजैकुलेशन डज नॉट अकर एज फ्रीक्वेंटली एज यूरिनेशन। तो जब भी हमारे यूरिन से यूरिनेशन होता है तो हमारे यूरिन में यूरिक एसिड होता है, इसके अलावा और भी कुछ कुछ एसिड्स होते हैं। तो हमारे यूरिन में यूरिक एसिड होता है, तो जब यूरिन यूरेथ्रा से पास होता है तो यूरेथ्रा में एसिड बच जाता है थोड़ा सा, तो पूरा यूरिन 100% यूरेथ्रा से नहीं क्लीन होता है। तो उस केस में यूरिक एसिड हो सकता है, यूरिया हो सकता है, उसके अलावा हिप्यूरिक एसिड हो सकता है। तो ये सारे एसिड्स पाए जाते हैं हमारे यूरेथ्रा में यूरिन की वजह से। तो ये सारे एसिड्स अल्टीमेटली स्पर्म्स को डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्पर्म्स को चाहिए होता है अल्कलाइन मीडियम, लेकिन इस यूरिक एसिड की वजह से जो यूरेथ्रा है वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो सबसे पहले इस यूरेथ्रा के एसिड को तो न्यूट्रलाइज करना होगा ना, तो उसके लिए इसका अल्कलाइन सिक्रीशन काम आता है। तो ये भी अल्कलाइन सिक्रीशन कर रहा है जस्ट लाइक अबव टू। सो दिस सिक्रीशन, दिस अल्कलाइन सिक्रीशन कमिंग फ्रॉम द काउपर्स ग्लैंड न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी इन द यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा काउपर्स ग्लैंड, क्योंकि यहीं से जो यूरिक एसिड और ये सारी चीजें हैं इनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। नाउ the mucus present in the secretion helps in lubrication। तो इसके जो सिक्रीशन है उनमें म्यूकस का भी प्रेजेंस है। और आपको डाइजेशन सिस्टम से पता होगा, क्योंकि आपने जब 11th क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, आपको ये चीज पता है कि म्यूकस क्या करता है, कहीं पर भी लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा म्यूकस के और भी फंक्शंस होते हैं जैसे कि प्रोटेक्शन एंड लाइकवाइज अदर फंक्शंस। तो बेसिकली ये जो म्यूकस है, इस म्यूकस की वजह से पेनिस के एंड पर लुब्रिकेशन होता है, क्योंकि पेनिस के एंड पर बहुत ज्यादा लुब्रिकेशन की जरूरत होती है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी एंड ऑल्सो अदरवाइज।
तो यहाँ पर पेनिस के एंड को लुब्रिकेट करता है। उसके अलावा जो स्पर्म्स का इजैक्यूलेशन होता है वो फोर्सफुल होता है, वो बहुत ही स्लोली इजैक्यूलेशन नहीं होता है, दैट्स वेरी मच ऑब्वियस। सो इस वजह से अगर लुब्रिकेशन नहीं होगा यूरेथ्रा के अंदर तो उस ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से स्पर्म्स डैमेज हो सकते हैं। तो यूरेथ्रा का भी ये लुब्रिकेशन करेगा म्यूकस, और उसके साथ साथ पेनिस के एंड का भी लुब्रिकेशन करेगा, जिससे कि सेक्सुअल एक्टिविटी ज्यादा कन्वीनियंट हो पाए। तो बेसिकली इसके लुब्रिकेशन जो यूरेथ्रा में होते हैं उसकी वजह से स्पर्म्स का जब इजैक्यूलेशन होगा तो स्पर्म्स कम डैमेज होंगे। तो बेसिकली इट इज प्रोटेक्टिंग द स्पर्म्स फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड एट द टाइम ऑफ इजैक्यूलेशन। सो दिस इज इट्स यूनिक फंक्शन। ऊपर में जो भी है उनका जो मेन फंक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इसका मेन फंक्शन है लुब्रिकेशन एंड ऑल्सो मेल के खुद के यूरेथ्रा में जो एसिड हैं जैसे कि हिप्यूरिक एसिड हो गया या फिर यूरिक एसिड है, इन सभी एसिड्स को न्यूट्रलाइज करना। So this was the function of these three glands, and obviously you have to remember the individual function of this alkaline fluid, fructose, prostaglandin, clotting factors, and also this mucus, and obviously calcium phosphate bicarbonate. So apart from these individual functions, the common functions are very much asked, and these are a very frequent question. तो common function क्या हो जाएगा? alkaline secretion तीनों से आएगा, तीनों का काम एसिड को न्यूट्रलाइज करना हो जाएगा। उसके अलावा स्पर्म्स को भी अल्कलाइन मीडियम की जरूरत होती है। उसके अलावा इन तीनों का कॉमन फंक्शन हो जाएगा स्पर्म्स को नरिश करना या उन्हें एक्टिवेट करना। तो ये सारे इनके कॉमन फंक्शन हो गए और उसके अलावा ये सारे इनके इंडिविजुअल फंक्शंस हो गए। दिस इज ऑल यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम हियर। सो दीज वर द 3 accessory glands in the case of males, and now we have completed the male reproductive system and also the male accessory glands, and now we have to study about the disorders, यानी कि मेल्स में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। जो स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े हैं जैसे कि हमने टेस्टिस पढ़ा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पढ़ा, या फिर ये जो भी पार्ट हमने पढ़ा, तो स्पर्म्स में या फिर मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या डिजीजेस हो सकते हैं, उन डिजीजेस के बारे में हमें पढ़ना है। और उसके अलावा हमने अभी कई बार सीमेन का बात किया। तो स्पर्म जो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं जो कि गैमीट्स होते हैं या जिन्हें हम सेक्स सेल्स कह सकते हैं, वो स्पर्म्स एक मीडियम में, एक फ्लूइड मीडियम में सस्पेंडेड होते हैं, उन्हें कहते हैं सीमेन। So now we will study about the semen and also the disorders of the male reproductive system.